my name is Manur Khalil. My name is Haya Ahmed. And my name is Mahanu Talim. Heard this word fintech, fintech, fintech. So what is fintech? Got my answer. Fintech is financial technology. Financial technology मतलब हम किसी को भी पैसे जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मगर टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे? जस्ट लाइक वी हैव अ सेल फोन। सेल फोन के ज़रिए अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने, किसी को पैसे की ज़रूरत है, हमें उसे ट्रांसफ़र करना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे? हमारे पास मोबाइल के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बैंक जाएं, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगाएं, और हम अपने बिल्स वगैरह इसी तरह इजीली वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिनटेक? Fintech or financial technology is the sector that leverages technology to improve, automate, innovate financial services or products. Fintech companies utilize software, mobile application, advanced technologies such as blockchain and artificial intelligence to stream operation, reduce cost, to provide user and more personalized and user-friendly financial experience. Discuss about the opportunities of financial technology. First, we have financial inclusions. Pakistan has around 200 million people, but 21% of the population has access to formal financial services. Fintech companies के पास potential है कि वो इस bridge को ख़त्म कर सकती हैं, इस gap को ख़त्म कर सकती हैं by providing affordable and accessible financial services. We have digital payments growth. The rise of mobiles and internet users with more than 120 million subscribers create an ideal environment in digital payment solutions. Like हमारे पास मोबाइल वॉलेट है, QR पेमेंट सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी. और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी की गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट इनिशिएटिव लिए, लाइक रास्ट है. ये ऑल आर प्लेस एंड एक्सेलरेट आर डिजिटल सर्विसेज. Small and medium enterprises are the backbone of Pakistan economy but faces different challenges in traditional financing. Fintech platforms हमें ऑफर कर रहे हैं different alternative lending solutions like digital platforms है, P2P lending हो गई. They all are enabling SME financing. और दूसरा है कि हमारे entrepreneurship और economic growth में भी help out कर रहे हैं. Support. The State Bank of Pakistan has taken proactive steps in fostering the growth of fintech by creating a conducive regulatory environment. अब इसके initiatives में हमारे पास electronic money institutions है, licensing frameworks से different frameworks आ जाएंगे, and they all are guiding to establish the fully digital banks in Pakistan. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लाइक हम देख सकते हैं कि हमारी आजकल जो टेक्नोलॉजी वो और एडवांस होती जा रही है. ग्रोथ ऑफ बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, फाइनटेक सॉल्यूशंस आर बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, ऑफरिंग पर्सनलाइज सर्विसेज लाइक एफिशिएंट फ्रॉड डिटेक्शन है और सिक्योर पेमेंट का ऑप्शन है. सब हमारे पास फाइनटेक कंपनीज की तरफ से आते जा रहे हैं. और सेकेंडली अगर हम देखें तो हमारी जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके अंदर रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, तो फाइनटेक कंपनीज इसमें भी रोल प्ले कर सकती हैं कि साथ साथ जो है रोबोटिक एडवाइजरी लेकर आ जाए और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वगैरह लेकर आ जाए, वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं. यंग डिजिटली इनेबल्ड पॉपुलेशन. पाकिस्तान की जो यूथ पॉपुलेशन एक तरह से हमारा सिग्निफिकेंट एसेट है, एंड अराउंड 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हमारे पास यंगस्टर आ जाते हैं, एंड दे ऑल आर डिमांडिंग एंड अडॉप्टिंग मोर डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, स्पेशली इन द एरिया ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, ई कॉमर्स, पर्सनल फाइनेंस एप्स. Let's talk about the fintech challenges in Pakistan. First, we have the lack of financial literacy. The lack of financial literacy means a large portion of Pakistan's population lacks basic financial literacy. Many people doesn't know the difference between the banking system and the digital payment platforms. अब जैसे कि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी का इतना नहीं है एरा. अब दुनिया में पूरी टेक्नोलॉजी चल रही है, हम आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ला रहे हैं अपने मुल्क में, लेकिन हम अपने लोगों को ये लिटरेट नहीं कर पा रहे कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, जिसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं. इसी वजह से हमारे बहुत सारे जो डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो नहीं चल पा रही हैं.
Infrastructure gaps means while mobile and internet penetration has grown, many rural areas still face connectivity issues, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ तो अलग अलग चीज़ है। अर्बन में तो फिर यूज़ हो रहा है, लेकिन रूरल में आज भी इंटरनेट कनेक्शंस नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग, वहाँ पे भी तो यूथ रहती है ना बहुत सारी हमारी, तो वहाँ के लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, जिसकी वजह से आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी रूरल एरियाज़ तक नहीं पहुँच सकी है। जबकि अर्बन एरियाज़ की जो यूथ है, इवन के अर्बन एरियाज़ में जो एजेड लोग हैं वो भी अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ के लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स आप देख सकते हैं पाकिस्तान में आजकल कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि क्या होता है कि आपका साइबर अटैक हो जाता है, आपके मोबाइल्स हैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि हम यूज़ नहीं करेंगे इन चीज़ों को, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे, जबकि वो ज़्यादा ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज भी लोग कोशिश करते हैं कि हम बैंक में जाएँ, अपने पैसे रखवाएँ और हम बैंक से जाके पैसे निकालें। वो ये यूज़ नहीं करते हैं कि हम डायरेक्ट अकाउंट को अकाउंट पेमेंट कर दें, ऑनलाइन पेमेंट कर दें। वो सारी इसी वजह से हो रहा है ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि लोगों को डर है कहीं ये ना हो कि हमारा पैसा जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट से कहीं ये ना हो कि वो कहीं और चला जाए, किसी और अकाउंट में चला जाए, उसका मोबाइल हैक हो जाए, उसका अकाउंट हैक हो जाए। Regulatory hurdles. While the government has been proactive in creating a regulatory framework, challenges remain. अब कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ तो साइबर अटैक्स होंगे ना हमारे पास, तो इस वजह से लोग डरते हैं। वो हर्डल्स आ रहे हैं, वो रेगुलेटरी हर्डल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आपको इस तरीके से करना है। उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि हमने इसी तरीके से इन्हीं रेगुलर बेस में जाकर काम करना है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस वजह से भी लोग डर रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि हम पकड़े जाएं। जस्ट लाइक मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अकाउंट्स को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि आपका रिकॉर्ड जाएगा और जब आपका रिकॉर्ड जाएगा तो गवर्नमेंट को पता होगा किसने कितना पैसा कहाँ कहाँ यूज़ किया है। उस वजह से लोगों को डर है, तो ये रेगुलेटरी हर्डल्स भी आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। Talk about the cash-driven economy. Pakistan is still heavily reliant on cash payments. As we know, हमारे पास बहुत सारे मसले हैं, जस्ट लाइक रेगुलेटरी हर्डल्स जो हमने ऊपर बात की है, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हम अकाउंट को अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा, जब रिकॉर्ड में आ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट देख लेगी, जब गवर्नमेंट देख लेगी तो फिर हम पकड़े जाएंगे। कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं लोग कैश में देने की कोशिश करते हैं ताकि हम पकड़े ना जाएं। तो इस वजह से आज भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम कैश पेमेंट करें, डिजिटल पेमेंट्स पे ना जाएं। Talk about the trust issues. Building trust among consumers is a critical challenge. अब बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फियर ऑफ फ्रॉड, ड्यू टू सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड द अनफेमिलियरिटी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल पेमेंट्स आ गए हैं जिनके ज़रिए आप पेमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन लोग डरते हैं। जैस कैश है, आप जैस कैश से कर सकते हैं, लेकिन लोग को ये ट्रस्ट इशू रहता है कि कहीं ये ना हो यार हमारा पैसा कहीं और चला जाए। ईजी पैसा है, ईजी पैसा में लोग डरते हैं, नहीं अगर हम ईजी पैसा में रखेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होंगी, हमारा पैसा कहीं और चला जाएगा, किसी और अकाउंट में चला जाएगा। तो इस वजह से लोग ईजी पैसा को भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बैक विद द कंक्लूजन, जैसे हम लोगों ने पहले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करी, तो पाकिस्तान में फिनटेक की अपॉर्चुनिटीज़ का है, मगर उसके साथ साथ चैलेंजेस का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जस्ट लाइक फाइनेंशियल कंपनीज़ जो हैं वो लोगों को लिटरेट नहीं कर पाती। फाइनेंशियल कंपनीज़ को क्या चाहिए? फाइनेंशियल कंपनीज़ को चाहिए कि वो लोगों को लिटरेट करें, बिकॉज दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू।